مہران ٹاؤن میں آتش زدگی کے واقعے میں محنت کشوں کی اموات پر مزدور یونین کا احتجاج سامنے آیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائیوں کی جانیں گئی ہیں، ہم خون معاف نہیں کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، مہران ٹاؤن آتش زدگی میں محنت کشوں کی اموات پر مزدور یونین کا احتجاج بھی سامنے آیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائیوں کی جانیں گئی ہیں، ہم خون معاف نہیں کریں گے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے مہران ٹاؤن واقعے کی ذمہ دار فیکٹری انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فیکٹری مالکان اپنا مال بچانے کے لیے خطرناک اقدامات کرتے ہیں، اگر فائر ایگزٹ ہوتی تو جانیں بچ سکتی تھیں۔ مستقبل کے لیے آج کے واقعے کو مثال بنانے کی ضرورت ہے۔ مرتضی وہاب نے فائر بریگیڈ کے تاخیر سے پہنچنے کی تردید کی۔ کٹنگ کر کے زیادتی شہر کے ساتھ کیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میرے لیے سب سے آسان کام ہے میں آگے کہہ دوں کہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی، گرل نہیں لگی ہوئی ہوتی تو شاید یہ جانیں بچ پاتی۔ اگر فائر ایگزٹ ہوتی تو یہ جانیں بچ سکتی تھیں۔ کسی کو کاروبار سے روکنا کسی حکومت کی ترجیح نہیں ہوتی، کاروبار کریں، لیکن کاروبار کرتے ہوئے جو انسانیت کا اسپیکٹ ہے اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں وہ ایل ڈی اے ہو، کے ڈی اے ہو، ایس بی سی ہو، جو لوگ ہیں قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری کے مالکان ہیں جن کو یہ ملازمین پیسے کما کے دیتے ہیں، ان کا درجہ باپ کا ہوتا ہے، بزرگ کا ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے، ان کو اپنے ملازمین کی خیر و فلاح کے لیے بھی انتظامات کرنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملبہ کسی صرف سرکاری ادارے میں نہیں، ہم سب کو بحیثیت قوم اگر ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی اور لیبر منسٹر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ متحدہ رہنما امین الحق نے کہا کہ سانحے میں جاں بحق 16 افراد کے لواحقین کو فی کس 25 لاکھ دیے جائیں۔ سابق میئر وسیم اختر کا کہنا تھا کہ فائر سیفٹی کا نظر انداز کر کے فیکٹری چلائی جا رہی تھی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امین الحق نے کہا کہ سندھ حکومت کی غفلت کے باعث 16 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ فائر بریگیڈ کو 52 نئے ٹینڈرز دیے گئے، لیکن صوبائی حکومت نے محکمے کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی۔ سانحے پر منسٹر لیبر اور ایڈمنسٹریٹر سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان سمجھتے کہ آج کے واقعے میں منسٹری فار لیبر کی ذمہ داری بنتی تھی کہ فائر سیفٹی رولز کو ہر صورت میں وہاں پہ میک شور کرنا تھا کہ اویلیبلٹی موجود ہو۔ منسٹری فار لیبر کے زیر تمام جو لیبر انسپیکٹر جاتا ہے، جو لیبر ڈائریکٹر جاتا ہے، وہ نذرانہ وصول کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کرپشن میں ملوث ہے اور نذرانے کے زور پر یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ سابق میئر وسیم اختر کا کہنا ہے کہ فائر سیفٹی کو نظر انداز کر کے فیکٹری چلائی جا رہی تھی، نہ کوئی آگ بجھانے کا بندوبست تھا اور نہ ہی اخراج کا کوئی راستہ تھا۔ اس طرح سے فیکٹری چل رہی تھی اور نہ وہاں کوئی ایسا انتظام تھا فیکٹری کا کہ کوئی فائر ایگزٹ رکھی جاتی یا کوئی ایسے گیٹس ہوتے جس سے ایسے واقعات میں لوگ ایکسیس ہو جن کو باہر نکلنے کا، وہ بھی نہیں تھا۔ بیچارے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہاں۔ سانحہ کرنگی فیکٹری کے باعث ایم کیو ایم پاکستان نے ماہ آزادی سے متعلق انو بھائی پارک میں منعقدہ آزادی کرکٹ مارچ مؤخر کر دیا، جبکہ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 25 لاکھ روپے کی امداد کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر خطرناک ہو چکی ہے، جس کے بعد سندھ میں تعلیمی اداروں کو لگے تالے 30 اگست کو مشروط بنیادوں پر کھلیں گے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو کرونا ویکسین کروانا لازمی ہے، جبکہ 100% عملہ کرونا ویکسین لگوائے گا تو ہی اسکول کھل سکیں گے۔ آزاد نہڑیوں کی رپورٹ۔ طالب علموں نے بہت چھٹیاں کر لیں، اب تعلیمی ادارے کھلیں گے 31 اگست سے۔ محکمہ تعلیمی بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسکولز، کالجز اور جامعات میں حاضری 50% رہے گی۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف 100% کورونا ویکسین کروائے گا۔ طالب علموں کے والدین بھی کورونا ویکسین لازمی طور پر کروائیں گے۔ طالب علم ماسک اور سینیٹائزر استعمال کرنے کے پابند ہوں گے۔ سماجی دوری کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا۔ آزاد نہڑیوں، سٹی 21۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شہریوں کو کرونا ویکسینیشن کے لیے مزید مہلت دے دی ہے۔ تعلیمی اداروں، ہوائی سفر کرنے والوں کو 30 ستمبر تک کی مہلت مل چکی ہے، جبکہ شاپنگ مالز میں داخلے، ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس میں بکنگ، آؤٹ ڈور شادی ہالز کے لیے بھی
30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के लिए 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने NCOC के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। शहर में कोरोना वायरस से अमवात को ब्रेक ना लग सकी। मोहलिक वायरस मजीद 16 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 596 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। कराची में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा सड़कों पर आ चुके हैं। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए तलबा ने फिजिकल क्लासेस का इनेकाद का मुतालबा कर दिया। कराची में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा मैदान में आ गए। तलबा का कहना था कि हम दूर दराज इलाकों से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम बड़ी मुश्किल से फ़ीसें भरते हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आता। अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है तो किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते। एहतजाज के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। गुज्जर नाला तजावुजात ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो मुबैना लीज मकानात को मिसमार करने का ये मामला है। हुक्म इम्तना के बावजूद FB एरिया कबाइल कॉलोनी में घर मिसमार करने पर अदालत ने डायरेक्टर KMC एंटी एक्रोचमेंट को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत अब्दुल बासित अफरीदी एडवोकेट की अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने कबायली कॉलोनी में लीज मकानात मिसमार करने से रोक रखा है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ डायरेक्टर एंटी एक्रोचमेंट और दीगर ने सामान समेत लीज मकानात मिसमार कर दिया, जबकि लिहाजा जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। शाकीवाड़ा लियारी में सीवरेज लाइन की तनसीब का काम कई माह से सुस्त रवि का शिकार है। गटर लाइन के लिए पूरी मेन रोड को खोदा गया। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। खुदाई के दौरान पानी और गटर की लाइनें मिक्स होने से इलाका मुकीन शदीद परेशान है। तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली की इस रिपोर्ट में। मसीहा आएगा हमारी किस्मत बदलेगा, लियारी वालों का सवाल। गड्ढे को तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए। खड्डा खोद के चले जाते हैं, फिर बाद में पुरसाने हाल वाला कोई नहीं होता, पूछने वाला कोई नहीं होता है। उनको नहीं पता यहाँ पे कितने हादसात होते हैं। आप खुद चल कर आए हो, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस की कोई रास्ता है? आप देख रहे हो, वो तो जो मरीज होगा वो तो रास्ते में ही अपनी जान दे देगा। कई माह हुए लियारी चाकीवाड़ा सड़क गटर लाइन की तनसीब के लिए खोदी गई, लेकिन काम है कि मुकम्मल होकर नहीं दे रहा। एक दिन काम होता है और कई दिन रुका रहता है। सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जाम मामूल की बात है, मरीज भी फंस जाते हैं। हम बोले भाई ये बैक साइड बनाओ, जो आधे काम हुए आधे काम पीछे रह गया, ये आप क्लियर करो। बोलता है नहीं, अभी भी साल 2 साल लगेगा। सवारी को यहाँ उतारना, वो रुतिया में पीछे से घुमा के लेके जाओ, बहुत परेशानी आवाम के लिए तो बहुत परेशानी। ये तो तोड़ के छोड़ देते हैं लेकिन बनाते नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। सड़क पार करना भी दुश्वार है। हुकूमत और मुतालिका महकमे पाइपलाइन की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि इलाका मकीनों को रिलीफ मिल सके। कराची के इलाके लालू खेत 10 नंबर मार्केट में मेन सड़क खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर कारपेट बिछाने का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। तफसीलात राना मालही की इस रिपोर्ट में। खेत 10 नंबर की मरकजी शाहराह के जहां अरसा दराज से सड़क की कारपेटिंग न की जा सकी, यहाँ से रोज हजारों गाड़ियों का गुजर होता है। मुसाफिरों का कहना है कि टूटी हुई सड़क की वजह से कई हादसात भी रोनुमा होते हैं। हर रोड का यही हशर हुआ है, कम से कम ये रोड तो बनवाते हैं। इधर बच्चे जाते हैं, कोई गिर जाए, कोई लेडीज के साथ गिर जाए, बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पर। ये रोड जो है ना, ये आज से नहीं है, ये मैं तो यूँ समझ लो कि कुछ 10 साल 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ। ये रोड कभी बनता ही नहीं है, जब भी बना है उसके 15 दिन के बाद दोबारा खोद देते हैं।
इंतजामिया को चाहिए जल्द से जल्द सड़क को दोबारा तामीर करवाए ताकि हादसात से बचा जा सके और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर न हो। कैमरामैन आसिफ हुसैन के हमरा राना मालही, सिटी 21। जबकि यही नहीं, फेडरल बी एरिया का झील पार्क भी तबाहली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरा पड़ा है, जबकि झील की जगह पर झाड़ियां आ चुकी हैं। आपको बताएं कि काबजीन ने पार्क में जानवर बांध दिए हैं। इलाका मुकीन कहते हैं कि बारहा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश कफीली। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के झील पार्क में ना झील है ना ही पार्क के कोई आसार। चार दीवारी के अंदर सिर्फ कचरा और झाड़ियां ही हैं। तबाहाल पार्क की सूखी झील में झाड़ियां उगी हुई हैं। पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है इस पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कचरा कुंडी बनी है मुस्तफल, इसको लोग कहते भी, हम लोग तो सामने रहते हैं, बिल्कुल हमारा घर सामने ही है, लेकिन लोग नहीं मानते ना, लड़ाई झगड़ा करने पे आ जाते हैं कचरे के लिए। पार्क में कब्जा माफिया ने भी अपने पंजे गाड़े रखे हुए हैं। कब्जा माफिया ने जानवर बांधकर पार्क को बाड़ा बना दिया है। कचरे की वजह से इलाके में मच्छर और मक्खियों की बहुतात है जो बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हुक्काम बाला नोटिस लेकर झील पार्क को जल्द से जल्द पुरानी हालत में बहाल करें। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। अजीज़ाबाद नंबर 4 के इलाके से खबर शामिल करेंगे, जहां पर पब्लिक पार्क और गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर कचरे के ढेर की वजह से ताफुन फैल रहा है। गंदगी की वजह से बच्चे पार्क में खेल भी नहीं सकते। तफसीलात राना मालही की इस रिपोर्ट में। अजीज़ाबाद में नज़र जहाँ जहाँ दौड़ाएंगे कचरे के ढेर ही नज़र आएंगे। ये मनाजिर किसी कचरा कुंडी के नहीं बल्कि अजीज़ाबाद नंबर 4 के पब्लिक पार्क और गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, जहाँ चारों अतराफ कचरा और गंदगी फैली हुई है। इलाका मकीनों का कहना है बकरा ईद के बाद किसी ने कचरा उठाने की जहमत ही नहीं की, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियाँ फैल रही हैं। ये बकरा ईद के बाद से ही है बड़े भाई गन तो, और काम होता है इसमें कोई शक नहीं है, मगर उस काम पे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती है। अभी आप ये देख रहे हैं बच्चों का साथ है, सब घर छोटे हैं, बीमारियां हैं चारों तरफ। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पे ज़रा नज़र करम कर फरमाएं, ताकि ये है कि इस चीज़ को एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द कचरा उठाया जाए ताकि पार्क में बच्चे खेल सकें और कॉलेज में आने वाले तलबा को कचरे की वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा राणा मली, सिटी 21। ज़िला के माड़ी में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद मीरानी ने अफसरान को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने रोड कारपेटिंग का मुआयना भी किया। ज़िला के माड़ी में तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद मीरानी की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और रोड कारपेटिंग का मुआयना किया। अफसरान से ब्रीफिंग ली। आफाक सईद ने अफसरान को हिदायत की कि किमाड़ी को मॉडल ज़िला बनाने के सिलसिले में तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में 4 ऑफिशियल्स की तकर्री और तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख ने मंजूरी दे दी है। सिंध हाई कोर्ट के ऑफिस एसोसिएट खालिद महमूद का नाजिर ब्रांच से फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, जबकि ऑफिस एसोसिएट समी अहमद का रिट ब्रांच से D2 ब्रांच तबादला किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हबीब खान और आप देख रहे हैं सिटी 21। मैं हूं मोहम्मद कामरान, आप देख रहे हैं सिटी 21। सैयद और आप देख रहे हैं सिटी 21।
कराची हमारी जिंदगी है और ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है। इसमें कैफे हैं, खुशियां हैं, रंग हैं, जायके हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, लहजे हैं, गीत हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं और हैं हम और आप। देखिए प्रोग्राम हम और आप पीर से जुमेरात की शब 6:05 पर सिर्फ सिटी 21 पर। मैं हूँ आज़ाद मोरियो और आप देख रहे हैं सिटी 21। अब आपको बताएं कि कॉटन की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। सिंध में रुई की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 14,100 तक पहुँच गई हैं। सिंध में कॉटन की कीमतों में इस्तेहकाम आ चुका। कपास फी मन कीमत 200 रुपये इजाफे के साथ 14,100 तक पहुँच गई है। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक पंजाब में रुई की कीमतें 300 रुपये फी मन इजाफे के साथ पिछले 11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 14,300 रुपये फी मन तक पहुँच गई हैं। रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे, बड़े बरामदी ऑर्डर्स और दरामदी रुई महंगी होने की वजह से रुई की कीमतों में भी तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। जिला शर्की के इलाके गुलशन इकबाल बाग रिजवान का मिनी जू बेजुबान जानवरों के लिए अकूबत खाना बन चुका है। पिंजरों में बंद बेजुबान जानवर बीमार होने लगे हैं। जिला शर्की के इलाके गुलशन इकबाल में कायम बाग रिजवान हुक्काम की अदम तवज्जुही का शिकार हो चुका है। पार्क में कायम 13 पिंजरों में मुश्तमिल मिनी जू के दरवाजे को ताला डाल दिया गया। मिनी जू के इकलौते हिरन का सींग भी टूटा हुआ है। आसेब, जिन्नात और बलाओं पर मबनी नावल लिखा कर दुनिया में कदम रखने वाली सलमा सैयद की ज़िंदगी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। खौफनाक ट्रैफिक हादसे के बाद उन्हें ज़िंदगी मामूल पर लाने में वक्त तो लगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने अदबी सलाहियतें भी अपनी निखार दी हैं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद के रिहायशी बाहिम्मत फिक्शन राइटर हैं। उन हवाले से आपको बता रहे हैं, आसेब, जिन्नात और बलाओं पर मबनी नावल लिख कर अदबी दुनिया में कदम रखने वाली सलमा सैयद की ज़िंदगी भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। खौफनाक ट्रैफिक हादसे के बाद उन्हें ज़िंदगी मामूल पर लाने में वक्त तो लगा, लेकिन इस दौरान उनकी अदबी सलाहियत भी निखर गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इस वक्त ड्रावनी कहानियां लिखने वाली खवातीन राइटर्स की तादाद ना होने के बराबर है। ऐसे में सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉरर नॉवेल लिखकर दुनिया अदब में अपनी जगह बनाने वाली सलमा सैयद की अपनी कहानी भी किसी अलमियत से कम नहीं। नौजवानी में होने वाले ट्रैफिक हादसे ने इन्हें कई सालों तक बेड रेस्ट पर मजबूर कर दिया। इस दौरान उनके अंदर का लिखारी जाग उठा और छोटी छोटी कहानियां लिखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नॉवेल लिखने का आगाज किया, जो अब किताबी शक्ल में शाया हो गया है। जब 2-4 किस्तें इसकी पोस्ट हुई तो लोगों का रिस्पांस देख के मैं हैरान थी और मैं खुद ये सोच रही थी कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। वापस आ रहे थे किसी तकरीब से या जा रहे थे तो उसमें शदीद चोटें आईं, जिसमें कमर में और घुटने में, जैसे कि कहानी में भी जिक्र है, तो घुटने में और कमर में मेरी शदीद चोटें आईं। तो उसके बाद से ये हुआ कि इलाज तो बहुत हुआ, लेकिन मुझे थोड़ी सी चलने में अभी भी परेशानी है। मेरे 4 और नावल हैं जो कि ऑमलेट ऑफिशियल के पेज पे हैं, ऑनलाइन है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द किताबी शक्ल में आएंगे। पॉपुलर फिक्शन में लिखा गया नॉवेल गो के सलमा सैयद का पहला नॉवेल है, लेकिन मौजू पर उनकी गिरफ्त जाहिर करती है कि वो एक मंशी हुई लिखारी हैं। यूरोप में तो इस वक्त भी आसेब, जिन्नात और जादू पर मावराई अदब तख्लीक हो रहा है, लेकिन उर्दू अदब में इस सिन्फ को दोबारा जिंदा करने में मुसन्निफा का भी हिस्सा शामिल हो गया है। 15 साल कबल होने वाले ट्रैफिक हादसे ने फिक्शन राइटर सलमा सैयद की जिंदगी को तो मुतासिर किया,
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज बुलंद हौसले के साथ नई ज़िंदगी जी रही हैं। इनकी जद्दोजहद दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। और आपको बताएं कि टेबल टेनिस की लिटिल स्टार्स बहनें कम उम्री में मेहनत और हिम्मत से अपना नाम बनाने लगी हैं। शहर कायद से देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। ये हैं उभरती हुई टेबल टेनिस खिलाड़ी 15 साला हाइका हसन और 9 साला ईमान हसन। हाइका कई सूबाई और कौमी टूर्नामेंट जीतने के बाद नेशनल रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर विराजमान है। हाइका टॉप 3 होने के सबब कतर में होने वाले एशियाई चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। मेरा जो एम है वो ये है कि मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन बनूं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और ओलंपिक में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाऊंगी। प्राइमरी की तालिबा ईमान ने भी फातियाना पेशकदमी का आगाज कर दिया है और कौमी चैंपियनशिप के ट्रायल में कई बड़ी खिलाड़ियों को शिकस्त दी। लिटिल स्टार्स के वालिद को अपनी बेटियों पर फख्र है। वो कहते हैं कि वालिदैन अपनी बच्चियों को खेलों के मौके भी फराहम करें। फिज़िकल जो हेल्थ और जो फिटनेस का जो है ना, इस पे भी वालिदैन को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको भी टाइम मैनेज करके टाइम स्लाइस ऐसा रखें जिसमें इनको वो काम कराएं। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी दें और ये ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में डालें, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दौर है और जो नई नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो हम अब बहुत ज़्यादा ही समझ लें कि इंसान आदी हो रहा है मशीनों का। तो हमें चाहिए कि हम खुद से भी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी रखें। सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी सलीम अहमद का कहना है कि ये दोनों बहनें पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तानी माशरे में वुमेन स्पोर्ट्स का फरोग मुश्किल ज़रूर पर नामुमकिन नहीं। लिटिल स्टार्स हाइका और ईमान उन तमाम जूनियर्स के लिए जिंदा मिसाल हैं जो अपने वालिदैन की सपोर्ट से इस खेल में भी अपना नाम बना रही हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ जावेद इकबाल, कराची। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि रमीज़ राजा काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, वो क्रिकेट को समझते हैं। मुस्तकबिल में उनके फैसलों को देखना होगा। उनको चाहिए कि मुल्क और पीसीबी से वफादार लोगों को आगे लाएं। मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो केपेबल हैं और असल चीज़ ये है कि रमीज़ भाई का जो मेन डिसीजन होगा वो ये होगा कि किन सिंसियर लोगों को, जो इस मुल्क से सिंसियर हैं, पीसीबी से सिंसियर हैं और प्रोफेशनल लोग इस इदारे को चला सकते हैं। इदारा हमेशा इन लोगों पे खड़ा होता है जो केपेबल लोग हों। अगर वो मेरिट के ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती हैं, पाँव पे चलती हैं। बहुत टैलेंट है इसके अंदर, लेकिन हमें उस चीज़ को अब थोड़ा सा निकालना भी ऊपर डिस्कवर करना पड़ेगा। यंग लड़के को चांस मिल रहा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये आखिरी जैसे शुएब मलिक का आखिरी वर्ल्ड कप है, गिव हिम अ चांस। उसकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात है और असल चीज़ ये है कि शुएब मलिक, हफीज़, इनकी ज़रूरत भी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।